It is such a wonderful privilege that we can hear God's voice. और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। When God made Adam and Eve, God gave them the privilege to listen to God speaking to them. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उनको ये सौभाग्य दिया कि वो परमेश्वर को बात करते हुए सुने। He knew what was best for them and gave them what was the best. वो जानता था उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा क्या है और उन्होंने उनको वही दिया। God's will for them was that they listen to God and obey Him. परमेश्वर की उनके लिए ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा माने। We know that the serpent deceived Eve through his craftiness. हम जानते हैं कि शैतान ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया। And Eve chose to listen to the serpent. और हवा ने ये चुनाव किया कि वो उस सांप को सुने। The serpent deceived her into eating the fruit in the garden of the knowledge of good and evil. और सांप ने उसको इस तरह फंसाया या भरमाया कि वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल से खाए। That God had told her not to eat. जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसको नहीं खाना चाहिए। Eve thought it was best to listen to the serpent than to God. हवा ने सोचा कि परमेश्वर से को सुनने के बजाय शैतान से सुनना ज्यादा बेहतर है। She didn't know that it was out of love that God had given that command. वो नहीं जानती थी कि परमेश्वर ने प्रेम की वजह से उस आज्ञा को दिया है। Adam also chose to eat the fruit from his wife. आदम ने भी यही चुनाव किया कि वो अपनी पत्नी की बात मानकर उस फल को खाए। He didn't think about what God had told him, and he was also deceived. उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने उसको क्या बताया है और इस वजह से वो फंस गया। They immediately lost fellowship with God. और तुरंत परमेश्वर के साथ जो सहभागिता थी उन्होंने खो दी। And then God stationed a cherubim and a flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life. और फिर परमेश्वर ने वहां एक करूब को रखा जो हर दिशा में जाकर जीवन के वृक्ष का जो मार्ग था उसकी रक्षा करता था। From that time on, every one of us is given a choice to listen to our own selves, the devil or God. उस समय से हम सभी के सामने ये चुनाव है, या तो हम अपने आप की सुने, शैतान की सुने या परमेश्वर की सुने। There have been many instances from then on when people chose to listen to their own flesh or the devil and fell into sin. उसके बाद ऐसी कई घटनाएं हुई जहां लोगों ने या तो अपनी ही देह की सुनी या शैतान की सुनी और इस वजह से वो पाप में गिरे। But some of them, like Abraham, Joseph, and Noah, and so many others in the Bible, we see who chose to listen to God. God had told them. पर उनमें से कुछ थे जैसे अब्राहम, यूसुफ, नूह और बाइबल में से कई लोग हैं जिन्होंने ये चुनाव किया कि वो परमेश्वर को सुने। And because of that, God's purposes for their life was fulfilled. और इसी वजह से परमेश्वर का उनके जीवन के लिए जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। Interesting part was one of them was Joseph, who we never hear in the Bible of anyone directly he listening to the audible voice of God. और इनमें दिलचस्प है यूसुफ, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते नहीं है कि किसी ने परमेश्वर की असली जो आवाज है उसको सुना। He had seen a dream, we know about that. हम ये जानते हैं कि यूसुफ ने एक सपना देखा था। But what we see is even when he went through those difficulties and problems, God was with him. That is one phrase we read in wherever we read about Joseph, we read about that. पर हम उसके जीवन में पाते हैं कि सारे परीक्षाओं में से होकर गुजर रहा था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। इन शब्दों को हम बार बार पढ़ते हैं उसके जीवन के विषय में। And then one more thing is that through those things he could sense that God was allowing all that. और एक और बात थी कि इन सारे परिस्थितियों में वो इस बात को महसूस कर पाया कि परमेश्वर उन सारी बातों में है। So even if we can't listen to the audible voice from this physical ears, we know when we listen to God, we know what God is speaking to us through that. और इसलिए यद्यपि हम अपने शारीरिक कानों से परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाए, पर हम परमेश्वर को कैन यू रिपीट ब्रदर? We can know that God is speaking to us through those circumstances and problems. और हम ये जान सकते हैं कि उन परिस्थितियों से और उन कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। That is why it is so important to open our ears to God to listen to Him. इस वजह से ये बेहद जरूरी है कि हम अपने कानों को खुले परमेश्वर की ओर उसको सुनने के लिए। Because there are always two voices speaking to us. We have to choose to listen to God.
क्योंकि हमेशा दो आवाजें होती है जो हमसे बात करती है और हमें हमेशा ये चुनना होता है कि हम परमेश्वर को सुने। Jesus was the only person who walked on this earth who listened, obeyed God, his Father all the time. यीशु मसीह ऐसा इकलौता व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर चला जिसने हर समय परमेश्वर की आवाज सुनी और उसकी आज्ञा मानी। Jesus was the Jesus was the Son of God even when he was on the earth. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तब भी वो परमेश्वर का पुत्र था, But he did not use his powers as God, but humbled himself. पर उसने परमेश्वर होने के सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अपने आप को नम्र किया। We read in Philippians 2 that he made himself of no repute but emptied himself. और फिलिपियो 2 में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। He listened to his Father at every moment of his life. उसके जीवन के हर क्षण में उसने अपने पिता को सुना। Jesus was the person who humbled himself the most, as he never used his own cleverness but always listened to the Father. यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आप को सबसे ज्यादा नम्र किया क्योंकि उसने कभी अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल न करते हुए हमेशा पिता को सुना And doing what God told him to do every time. और हर समय वही किया जो परमेश्वर उससे करने को कहता था। He always lived in tune with his heavenly Father. वो हर समय अपने पिता के साथ साथ चलता था And therefore, he had the right word from God every moment of his life. और इस वजह से उसके जीवन में हर क्षण में उसके पास सही शब्द होता था। In the temptations in the wilderness, he had an answer to every temptation he faced. जब जंगल में उसकी परीक्षा हुई तो हर परीक्षा का उसके पास उत्तर था। The reason for that was he knew the scriptures well. उसका एक कारण ये था कि वो बाइबल को भली भांति जानता था And that's why the right word was brought to his remembrance in every situation and he always overcame. और इस वजह से हर परिस्थिति में सही शब्द उसको याद दिलाया गया और इस वजह से हर परीक्षा में वो जयवंत हुआ। That is why it's so important to know the Bible so that the Holy Spirit can remind me of a specific verse for every moment. इस वजह से बाइबल को जानना बेहद जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा हर परिस्थिति में मुझे सही वचन को याद दिला सके। In one of the temptations in Matthew 4, मत्ती 4 में एक परीक्षा में हम देखते हैं 3 and 4, we know when Satan came and said to him, if you are the Son of God, command that these stones become bread. तीसरे और चौथे वचन में शैतान ने उसके पास आकर कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। But Jesus answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. पर यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। This was one of the most, I believe this was one of the most important words on which Jesus lived all through his 30 years of life at home before he began his ministry. और ये एक सबसे महत्वपूर्ण वचन था जो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह अपने 30 वर्ष के जीवन में जिया उसकी सेवकाई आरंभ करने से पहले। After that also he lived by that, but those 30 years when we don't know much about that life, but that those times he lived always listening, always living by the word of God. उसके बाद भी वो इसी वचन के अनुसार जिया पर विशेषकर उन 30 वर्षों में जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं उसमें हर समय पिता के हर वचन के द्वारा वो जिया। Jesus knew the importance of listening and living by the word of God. यीशु मसीह इस बात का महत्व जानता था कि परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके द्वारा जीना। Jesus humbled himself so much that he never did what he thought was right, but depended on his heavenly Father. यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो कभी उस पर निर्भर नहीं था जिसको वो सही समझता था बल्कि हमेशा वो पिता पर निर्भर होता था And allowed his Father to do his work in him. और उसने पिता को अनुमति दी कि वो उसका काम उसके जीवन में पूरा करे। In one place in John 14, और यूहन्ना 14 में 8 to 10, 8 से 10 वचन Philip asked him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे यही हमारे लिए बहुत है। Jesus said to him, have I been so long with you, and yet you have not come to know me, Philip? और यीशु ने उससे कहा हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? He who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमने नहीं देखा? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ मैं अपनी ओर से नहीं कहता, but the Father abiding in me does his works. परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है।
Jesus set us such a good example by humbling himself and depending on the Father for everything. यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण छोड़ा, अपने आप को नम्र करके और हर बात में पिता पर निर्भर रहकर। Let us ask the Holy Spirit, including me. I want to ask the Holy Spirit, Lord, show me how you depended completely on the Father for everything and listen to the Father every moment. और आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु तू मुझे दिखा कैसे हर समय तू अपने पिता पर निर्भर होता था। It says about Jesus in 1 Peter 2:21 onwards. यीशु के विषय में पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से आगे लिखा है, For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। And while being reviled, he did not revile in return. और वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। While suffering, he uttered no threats, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, but kept entrusting himself to him who judges righteously. पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। Jesus lived the whole life, his whole life was lived filled in the Holy Spirit. यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिया। I believe Jesus was wronged many times during his life on earth. मेरा विश्वास है कि इस पृथ्वी के यीशु के जीवन में कई बार उसके साथ गलत हुआ। Everything is not mentioned in the scriptures. सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी गई है। We know more about how he reacted when he was being taken to be crucified. हम जानते हैं कि उसने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी जब उसको क्रूसित होने के लिए ले जाया जा रहा था। And also on that cross. और उस क्रूस पर भी। I believe his life before he was 30 was filled with many sufferings and misunderstandings with many. मेरा विश्वास है 30 की उम्र के पहले उसका जीवन बहुत ही समस्याओं से भरा हुआ और लोगों के द्वारा गलतफहमी से भरा हुआ था। We know that verse in Hebrews which says he was tempted in all points as we are, yet he did not sin. हम इब्रानियों में उस वचन को जानते हैं कि वो सब बातों में हमारी तरफ परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। So I believe that Jesus faced a lot of reviling and teasing, being called bad names. और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने बहुत ही निंदा का और चिढ़ाने का सामना किया। But he never took revenge, as it says in that verse we read. पर जैसे हमने इस वचन में पढ़ा, उसने कभी भी बदला नहीं लिया। We know what he did that time. हम जानते हैं कि ऐसे समय वो क्या करता था। He uttered no threats, but kept entrusting himself to God who judges righteously. वो कभी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। Every time he suffered, he left his case in the hands of God. जब कभी वो दुख उठाता था, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। On God who judges fairly, it says in another version of 1 Peter 2:23. और पहला पत्रस 2:23 के दूसरे अनुवाद में लिखा है, ऐसे परमेश्वर के हाथ में सौंपता था जो बिल्कुल न्याय से सही न्याय करता है। How could Jesus always react in the correct way every time? कैसे यीशु मसीह हर समय बिल्कुल सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाता था? Whenever he faced temptation or trial, जब कभी वो परीक्षा या प्रलोभनों का सामना करता था, it was because he always humbled himself. He made himself of no repute. उसका कारण यह था कि उसने हमेशा अपने आप को नम्र किया। He made himself of no repute. और बिल्कुल किसी भी कीर्ति से उसने अपने आप को बचाए रखा। He became a nobody and listened to what his father told him at every moment. और वो बिल्कुल शून्य हो गया और हर समय पिता जो कहता था उसी को उसने सुना। We know that verse from Isaiah which says every morning Jesus' ears are open to listen as a disciple. और हम यशायाह के अध्याय के उस वचन को जानते हैं जहां लिखा है कि हर सुबह यीशु मसीह अपने कानों को एक शिष्य के समान खोलने के लिए तैयार होता था। We who are brothers of Jesus, will not our heavenly Father do the same for us if we ask God to speak to us? हम जो यीशु मसीह के भाई है, क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए वही नहीं करेगा अगर हम उससे मांगे कि वो हमसे बात करे? If we are always listening to God speaking, then when suddenly we need a word for ourselves or for others, we will have it to give because we have been listening to God. अगर हम निरंतर हर समय परमेश्वर को सुन रहे हैं, तो जब कभी हमारे पास जरूरत होती है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हमारे लिए या औरों के लिए, फिर हम उसको प्राप्त करेंगे क्योंकि हम हमेशा ही सुन रहे हैं। In Matthew 16:21, मत्ती 16:21 में Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes.
यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि उसको यरूशलेम में जाकर पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाना है and then be killed and be raised up on the third day. और उसके बाद मार डाला जाना है और तीसरे दिन जी उठना है। Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord. और पतरस उसने उसे अलग ले जाकर उसको वो झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे, This shall never happen to you. तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। But Jesus replied, Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are a stumbling block to me. पर यीशु मसीह ने मुड़कर उसको उत्तर दिया, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे ये ठोकर का कारण है। For you are not setting your mind on God's interest but man's. क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। There are two choices before us. और हमारे सामने दो चुनाव होते हैं। We are either like Peter, thinking about ourselves and responding to what our self-will says, tells us. या तो हम पतरस जैसे हैं जहां हम अपनी अपनी ही बात मानकर अपने स्वयं की इच्छा को सुनते हैं। Jesus always denied his self-will. यीशु मसीह ने हमेशा अपने स्वयं की इच्छा का इनकार किया And so he could listen to what his father told him. और इस वजह से वो उसको सुन पाया जो उसका पिता उससे कह रहा था। That's why Jesus told his disciples later in that chapter, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. इस वजह से यीशु ने अपने शिष्यों को आगे उसी अध्याय में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। If I want to listen to the voice of the Holy Spirit, I have to deny my self-will and any other voices. अगर मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहता हूं तो मुझे अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करना होगा और बाकी अन्य आवाजों का इनकार करना होगा। I need to surrender my self-will and only yield to the voice of the Holy Spirit every moment. मुझे अपने स्वयं की इच्छा को समर्पित करना होगा और हर समय पवित्र आत्मा की आवाज को समर्पित करना होगा। Jesus was not afraid to offend anyone if that meant he obeyed his father. यीशु मसीह इस बात से नहीं डरता था कि किसी और को बुरा लगे अगर उसके पिता की बात उसको माननी हो तो। So many things that I see in Jesus' life is so many things are challenging to me, and I need to learn so much from Jesus. और यीशु के जीवन में मैं ऐसे कई बातें देखता हूँ जो मेरे लिए एक चुनौती की बात है और मुझे उसके जीवन से इतना कुछ सीखना है। See, there are some reasons why we cannot listen to the voice of the Holy Spirit. और कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। One of the reasons is I don't have a clear conscience. एक कारण ये है कि मेरे पास एक शुद्ध या साफ विवेक नहीं है। When the Holy Spirit reminds me of something unclear with God or with someone else, unless that is cleared, I won't be able to hear anything else. जब पवित्र आत्मा मुझे कुछ याद दिलाता है, एक ऐसी बात जो या तो मुझे परमेश्वर के साथ ठीक करनी है या किसी व्यक्ति के साथ ठीक करनी है, जब तक मैं उसको नहीं ठीक करता तब तक मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता। Jesus always lived in perfect communion with his Father. परमेश्वर हर समय अपने पिता के साथ बिल्कुल सिद्ध संगति या संपर्क में रहता था। He could hear his Father's voice clearly all the time. वो हर समय अपने पिता की आवाज बिल्कुल स्पष्टता से सुन पाता था। Because he never sinned even once. क्योंकि उसने एक बार भी पाप नहीं किया। Another is if our mind is occupied with something else like making money or love of anything of this world, then that will crowd out the voice of God. दूसरी बात, अगर हमारे मन में कुछ और बातें ही है कि इस पैसे का प्रेम या इस संसार की अन्य बातें, तो ये सारी बातें हमारे मन से परमेश्वर की आवाज को दूर हटाएंगे। We won't be able to hear him. हम उसको नहीं सुन पाएंगे। If self is in the center of our life, we will always be thinking of what will suit our self life and what is good for us. जब स्वयं हमारे जीवन के केंद्र स्थान में होगा तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे स्वयं को क्या भाता है और मेरे लिए क्या अच्छा है। We would not be thinking of what God is speaking to us or what are his interests. और हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है या उसको किस बात में दिलचस्पी है। I need to humble myself and surrender my self-will in every situation and yield to God's will so that I can listen to him. मुझे अपने आप को नम्र करना है और हर परिस्थिति में अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करना है ताकि मैं उसको सुन सकूं। In John 10:27, यूहन्ना 10:27 में Jesus said, "My sheep hear my voice and I know them, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ and they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand." और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी। What a wonderful promise to those who hear God's voice. और क्या ही अद्भुत वायदा है उनके लिए जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं।
we will have an intimate relationship with Jesus, and he will give us eternal life, and we will never perish, and we'll be with Jesus forever. हमारे पास यीशु के साथ एक नजदीकी संबंध होगा और हम उसकी आवाज सुनेंगे और हम अनंत जीवन पाकर उसके साथ होंगे। Jesus says in the next verse in 29, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. और यीशु मसीह अगले वचन 29 वचन में कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। We can claim this promise for our life if we listen to God's voice always. हम इस वायदे का अपने जीवन पर दावा कर सकते हैं अगर हम हर समय परमेश्वर की आवाज सुने तो। It is so important to hear God's voice. और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने। Otherwise, how will I follow Jesus in different life situations that I'm faced with? नहीं तो मैं कैसे यीशु मसीह के पीछे चल सकता हूँ जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में जिसका मैं सामना करता हूँ। This past week, I was faced with so many issues at home due to a laptop was not working. और इस पिछले हफ्ते में मैंने कई समस्याओं का सामना किया घर में क्योंकि मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा था। And due to that not working, there were other problems also along with that. और उसी के साथ दूसरी भी समस्याएं थी। Children's online class was there, and I also needed the computer for my work. और बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और मुझे कंप्यूटर की आवश्यकता मेरे काम के लिए भी थी। At that moment, when faced with all these problems, Holy Spirit reminded me to thank God in those situations. और जब उस समस्या में इन सारे समस्याओं का सामना करते हुए पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि हर परिस्थिति में मुझे प्रभु का धन्यवाद करना है। Also, he told me that God causes all things to work together for the good to those who love God and to those who are called according to his purpose. और उसने मुझसे ये भी कहा कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। I had the choice to listen to my flesh and complain and grumble about the situation. और मेरे पास ये चुनाव था या तो मैं अपनी देह की बात मानकर उस परिस्थिति के बारे में कुड़कुड़ाता और शिकायत करता। When the Holy Spirit tells me in my heart to keep quiet, I need to listen. जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में मुझसे कहता है चुप रहने के लिए तो मुझे उससे सुनना है। Sometimes he will tell me to go down and humble myself. कभी-कभी वो मुझसे कह सकता है कि मुझे जाकर अपने आप को नम्र करना है। I need to listen to that voice मुझे उस आवाज को सुनना है and humble myself. और अपने आप को नम्र करना है। My flesh and myself will always has a tendency to sin. So I need the Holy Spirit's power to listen and obey his voice. मेरा देह और मेरे स्वयं की इच्छा की हमेशा यही इच्छा होती है कि मैं पाप करूं, इस वजह से मुझे हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है। Jesus could call Jesus could call Judas his friend when he came to betray him. यीशु मसीह यहूदा को अपना मित्र कह सका जब वो उसका साथ विश्वासघात करने आया था। He said in Matthew 26:50. और मत्ती 26 उसके 50 में उसने ये कहा, Friend, do what you have come for. हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। Peter responded by using the sword and cutting off the high priest's slave's ear. और पतरस ने प्रतिक्रिया इस प्रकार दी, उस तलवार को खींचकर उस महायाजक के एक दास पर चलाकर उसके कान को उड़ा दिया। Jesus said in verse 52 and 53, put your sword back into its place. और यीशु मसीह ने 52 और 53 वचन में कहा कि अपनी तलवार म्यान में रख ले। For all those who take up the sword shall perish by the sword. क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। Or do you think that I cannot appeal to my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? Jesus could have called angels for himself, but he never did his own will, but always listened to the voice of his Father. यीशु मसीह अपने आप के लिए स्वर्गदूतों को बुला सकता था, पर उसने कभी अपनी इच्छा नहीं की, वरन पिता की इच्छा और आवाज को सुना। Jesus was totally yielded to his Father's will, even at the cost of giving up his life. यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा करने के प्रति समर्पित था, यद्यपि इसका मतलब अपना जीवन समर्पित करना हो। And also losing that fellowship with the Father for 3 hours on the cross. और यद्यपि उसको पिता के साथ उस क्रूस पर 3 घंटों के लिए उस संगति को खोना पड़े। He was totally obedient to his Father in the most painful moments of his life. वो पूरी तरीके से अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी था, अपने जीवन के सबसे दर्दनाक समय में भी। In Gethsemane, when Jesus was praying, he told his disciple one statement. और गेत्सेमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपने शिष्यों को एक वाक्य कहा, which I believe he always was aware of throughout his life. जो मैं विश्वास करता हूं कि अपने जीवन भर यीशु मसीह उसका ध्यान देता था।
In Matthew 26:41, मत्ती 26:41 में Jesus said, "Keep watching and praying that you may not enter into temptation." यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। The spirit is willing, but the flesh is weak. आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। I need to remember that my flesh is always weak. मुझे इस बात को याद रखना है कि मेरा शरीर, मेरा देह हमेशा निर्बल है। It is only by the Holy Spirit that I can overcome. वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही है कि मैं जय पा सकता हूँ। Even after listening to God's voice, even to obey that voice, I need God's power. और परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी उसकी आज्ञा मानने के लिए मुझे उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है। Jesus told them the secret is to watch and pray. और यीशु मसीह ने उनको बताया कि रहस्य ये है कि जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। That is why we see the different reactions that happened with the disciples, with Peter and Jesus. और Jesus इसी watched and prayed. Yeah. और यही कारण है क्यों हम पतरस और यीशु मसीह के प्रतिक्रियाओं में एक अंतर पाते हैं। Because he watched and prayed, he could have the right reaction in every situation. क्योंकि यीशु मसीह जग रहा था और प्रार्थना कर रहा था, इसलिए हर समय में उसके पास सही प्रतिक्रिया थी। One of the most important parts of prayer is to listen. Listening is more important. Listening to God and responding as He speaks to me. और प्रार्थना का एक सबसे जरूरी पहलू ये है कि परमेश्वर की आवाज सुनना And responding as He speaks to me. और जैसे वो मुझसे बात करता है उसको उत्तर देना या उसको प्रतिक्रिया देना। I need to remain in constant communication with the Father so that in every situation I can respond in a Christ-like way. मुझे पिता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना है ताकि हर परिस्थिति में मैं मसीह जैसे प्रतिक्रिया दे पाऊं। It says in Psalms 25:9, और भजन संहिता 25:9 में लिखा है, He leads the humble in justice and He teaches the humble His way. वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। I can learn God's way and listen to God's voice when I learn to be humble. मैं परमेश्वर के मार्ग को सीख सकता हूँ जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। We know that verse in Matthew 11:28 and 29, हम मत्ती 11 उसके 28-29 में उस वचन को जानते हैं, where Jesus tells us to come to Him and take His yoke and learn from Him, for He is gentle and humble in heart. जहाँ यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, And you will find rest for your souls. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Jesus' life was always at rest because He was totally dependent on His Father. यीशु मसीह का जीवन हमेशा विश्राम में बना रहता था क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने पिता पर निर्भर था। And He knew that whatever happened in His life is always allowed by His Heavenly Father. और वो जानता था कि उसके जीवन में जो कुछ होता है उसकी अनुमति हमेशा उसका पिता ही देता है। We can have choice of one example of I was just remembering one example where about Cain and Abel. और मैं एक उदाहरण के विषय में सोच रहा था, कैन और हाबिल के विषय में। God told Cain that why is your face fallen? Like why are you like Cain was jealous of his brother Abel. और परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है, क्यों तू क्रोधित है? क्योंकि कैन अपने भाई के विषय में जलन रखता था। So this is one example where God I can either yield to that voice of jealousy or I can yield to the voice of the Holy Spirit telling me to appreciate my brother and pray for him and pray that the best will happen for that brother whom I am jealous of. और ये एक उदाहरण है जहां या तो मैं अपने अंदर से आने वाली उस जलन की आवाज को सुन सकता हूं या पवित्र आत्मा को सुन सकता हूं कि मैं उस जलन को छोड़कर उस भाई की प्रशंसा करूं और उसके साथ सब कुछ भला हो, ये लालसा रखूं। I can cry out to God, Lord, I don't want this jealousy. I want to be filled with love for that brother. मैं परमेश्वर की ओर पुकार सकता हूं कि प्रभु, मेरे मन में मैं इस जलन को नहीं चाहता, बल्कि मेरे हृदय को उस भाई के लिए प्रेम से भर दे। As that verse says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Lord, I want to rejoice with that brother. I want to weep with him when he is in trouble. और जैसे वो वचन कहता है कि आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाओ और विलाप करने वालों के साथ मिलाप करो, तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु, उस भाई के साथ मुझे आनंद बनाने की सहायता कर और उसके कठिन परिस्थिति में विलाप करने की सहायता कर। It is not possible with our own strength, but God can help us. He will change us. ये हमारे खुद की सामर्थ्य से बिल्कुल संभव नहीं है, पर परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमें बदलेगा। Maybe it will not happen in one day, but if I always listen to the voice of the Holy Spirit and yield to it, then God can change me slowly. शायद वो एक दिन में नहीं होगा, पर अगर मैं हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहा हूं और उसके प्रति समर्पित हो रहा हूं, तो परमेश्वर धीरे धीरे करके मुझे बदलेगा।
I am not speaking like I am a perfect person. I have also failed many times. मैं इस प्रकार बात नहीं करता मानो मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैंने भी कई बार गलतियां की है। But I desire, Lord, I want this life where I want to always listen to you. पर मेरी ये लालसा है कि प्रभु मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जहां मैं हर समय तुझे सुन रहा हूँ। May God help us to live a worthwhile life by listening to the voice of the Holy Spirit in our heart. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक सही जीवन जिए पवित्र आत्मा की आवाज को अपने हृदय में सुनकर, And to respond to every situation as the Holy Spirit speaks to us. और हर परिस्थिति में इस प्रकार प्रतिक्रिया देते हुए जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। Amen. आमीन।